بچوں، ہم آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنانے والے ہیں جس کا عنوان ہے چچا چھکن نے تصویر ٹانگی۔ ہاں، تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے۔ چچا چھکن کبھی کبھار کوئی کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں تو گھر بھر کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ بچوں، تگنی کا ناچ نچانا یعنی بہت زیادہ پریشان کرنا۔ وہ کہتے ہیں آبے جابے، یہ کیجو وہ دیجو، گھر بازار ایک ہو جاتا ہے۔ دور کیوں جاؤ، پرسوں پرلے روز کا ذکر ہے، دکان سے تصویر کا چوکٹھا لگ کر آیا۔ اس وقت تو دیوان خانے میں رکھ دی گئی۔ شام کہیں چچی کی نظر اس پر پڑی تو بولی، چھٹن کے ابا، تصویر کب سے رکھی ہوئی ہے؟ خیر سے بچوں کا گھر ٹھہرا، کہیں ٹوٹ پھوٹ گئی تو بیٹھے بٹھائے ₹2 کا دھکا لگ جائے گا۔ کون ٹانگے گا اس کو؟ ٹانگتا اور کون؟ میں خود ٹانگوں گا۔ کون سی ایسی جوئے شیر لانی ہے؟ رہنے دو، میں ابھی سب خود ہی کیے لیتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی شیروانی اتار چچا ٹانگنے کے در پہ ہو گئے۔ امامی سے کہا، بیوی سے 2 آنے لے کر میخیں لیا۔ بچوں، آپ میں سے کچھ بچے نہیں جانتے ہوں گے کہ میخ کا مطلب کیا ہے۔ میخ یعنی کیل، جو کوئی چیز ٹانگنے کے لیے ہم دیوار پر ٹھوکتے ہیں۔ ہاں، تو وہ میخیں منگواتے ہیں۔ ادھر دروازے سے امامی نکلا، ادھر مودے سے کہا، مودے مودے، امامی کے پیچھے ہو جا، کہیو 3 انچ کی ہوں میخیں، بھاگ کر جا لیجو اسے راستے ہی میں۔ لیجئے، تصویر ٹانگنے کی داغ بیل پڑ گئی اور اب آئی گھر بھر کی شامت۔ ننے کو پکارا، او ننے، جانا ذرا میرا ہتھوڑا لے آنا۔ بنو، جاؤ اپنے بستے میں سے چفتی نکال لاؤ، اور سیڑھی کی ضرورت بھی تو ہوگی ہم کو۔ بچوں، چفتی یعنی چپٹی لکڑی، جیسے آپ کی اسکیل ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیڑھی منگوائی اور پھر کہنے لگے، ارے بھائی للو، ذرا تم جا کر کسی سے کہہ دیتے سیڑھی یہاں آ کر لگا دے، اور دیکھنا وہ لکڑی کے تختے والی کرسی بھی لے آتے تو خوب ہوتا۔ چھٹن بیٹے، چائے پی لی تم نے؟ ذرا جانا تو اپنے ان ہمسائے میر باقر علی کے گھر، کہنا ابا نے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے آپ کی ٹانگ اب کیسی ہے، اور کہیو وہ جو ہے نا آپ کے پاس، کیا نام ہے اس کا، لو بھول گیا، پلول کے ٹلول، اللہ جانے کیا تھا۔ خیر، وہ جو کچھ بھی تھا تو یوں کہہ دیجو کہ وہ جو آپ کے پاس آلہ ہے نا جس سے سیدھ معلوم ہوتی ہے، وہ ذرا دے دیجئے، تصویر ٹانگنی ہے۔ جائیو میرے بیٹے، پر دیکھنا سلام ضرور کرنا اور ٹانگ کا پوچھنا نہ بھول جانا، اچھا؟ یہ تم کہاں چل دیے للو؟ کہا جو ہے ذرا یہیں ٹھہرے رہو، سیڑھی پر روشنی کون دکھائے گا ہم کو؟ پھر اچانک امامی کو پوچھتے ہیں، آ گیا امامی؟ لے آیا میخیں؟ مودا مل گیا تھا؟ 3 انچ ہی کی ہے نا؟ بس بہت ٹھیک ہے۔ لو، ستلی منگوانے کا تو خیال ہی نہ رہا، اب کیا کروں؟ جانا میرے بھائی، جلدی سے ہوا کی طرح جا اور دیکھو بس 1.25 گز ہو ستلی، نہ بہت موٹی نہ بہت پتلی، کہہ دینا تصویر ٹانگنے کو چاہیے ہے۔ لے آیا؟ او ودو کہاں گیا ودو میاں؟ پھر چچا بڑبڑانے لگتے ہیں، اسی وقت سب کو اپنے اپنے کام کی سوجھی ہے، یوں نہیں کہ آ کر ذرا ہاتھ بٹائیں۔ یہاں آؤ، تم کرسی پر چڑھ کر مجھے تصویر پکڑانا۔ اب خدا خدا کر کے تصویر ٹانگنے کا وقت آیا، مگر ہونی شدنی چچا اسے اٹھا کر ذرا وزن کر رہے تھے کہ ہاتھ سے چھوٹ گئی، گر کر شیشہ چور چور ہو گیا۔
ہے کہہ کر सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। चचा ने कुछ खफीफ होकर किरचों का मुआयना शुरू कर दिया। वक्त की बात, उंगली में शीशा चुभ गया, खून की तलल्ली बन गई। बच्चों, तलल्ली यानी खून की धार बनना, यानी उनकी उंगली से खून बहने लगा। तस्वीर को भूल अपना रुमाल तलाश करने लगे। रुमाल कहाँ से मिले? रुमाल था शेरवानी की जेब में। शेरवानी उतार कर न जाने कहाँ रखी थी। अब जनाब घर भर ने तस्वीर टांगने का सामान तो ताक पर रखा और शेरवानी की ढूंढिया पड़ गई। चचा मियाँ कमरे में नाचते फिर रहे हैं, कभी इससे टकराते हैं, कभी उससे। सारे घर में से किसी को इतनी तौफीक नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले। उम्र भर ऐसे निकम्मों से पालाना पड़ा था। और क्या झूठ कहता हूँ? 6 आदमी हैं और एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते, जो अभी 5 मिनट भी तो नहीं हुए मैंने उतार कर रखी है भाई। इतने में खुद ही किसी जगह से बैठे बैठे उठते हैं और देखते हैं कि शेरवानी पर ही बैठे हुए थे। अब पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अरे भाई रहने देना, मिल गई शेरवानी, ढूंढ ली हमने। तुमको तो आंखों के सामने बैल भी खड़ा हो तो नजर नहीं आता। आधे घंटे तक उंगली बनती बंधाती रही। याद है ना आप लोगों को कि चचा की उंगली में कांच चुभ गई थी। नया शीशा मंगवा कर चौखटे में जड़ा और तमाम किस्से तय करने पर 2 घंटे बाद फिर तस्वीर टांगने का मरहला दरपेश हुआ। औजार आए, सीढ़ी आई, चौकी आई, शमा लाई गई। चचा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और घर भर, जिसमें मामा और कहारी भी शामिल हैं, नीम दायरे की शक्ल में इमदाद देने को कील कांटे से लैस खड़े हैं। 2 आदमियों ने सीढ़ी पकड़ी तो चचा जान ने उस पर कदम रखा। ऊपर पहुंचे, एक ने कुर्सी पर चढ़कर मेखें बढ़ाई, एक मेख कबूल कर ली, दूसरे ने हथौड़ा ऊपर पहुंचाया। संभाला ही था कि मेख हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। खिसियानी आवाज में चचा बोले, ए लो, अब कमबख्त मेख छूटकर गिर पड़ी, देखना कहाँ गई। बच्चों, कहानी का ये मंजर बड़ा दिलचस्प है, गौर से सुनिए। सब के सब घुटनों के बल टटोल टटोल कर मेख तलाश कर रहे हैं और चचा मियाँ सीढ़ी पर खड़े होकर मुसलसल बड़बड़ा रहे हैं, मिली? और ये कमबख्तों ढूंढी? अब तक तो मैं 100 मरतबा तलाश कर लेता, अब मैं रात भर सीढ़ी पर खड़ा खड़ा सूखा करूंगा। नहीं मिलती तो दूसरी ही दे दो अंधो। ये सुनकर सबकी जान में जान आ जाती है, तो पहली मेख ही मिल जाती है। अब मेख चचा जान के हाथ में पहुंचा देते हैं तो मालूम होता है उस अरसे में हथौड़ा गायब हो चुका है। ये हथौड़ा कहाँ चला गया? कहाँ रखा था मैंने? ला हौल वला कुव्वत। उल्लू की तरह आंखें फाड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? 7 आदमी और किसी को नहीं मालूम हथौड़ा मैंने कहाँ रख दिया। बड़ी मुसीबतों से हथौड़े का सुराग निकला और मेख गड़ने की नौबत आई। अब ये भूल बैठे हैं कि मापने के बाद मेख गाड़ने को दीवार पर निशान किस जगह किया था। सब बारी बारी कुर्सी पर चढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि शायद निशान नजर आ जाए। हर एक को अलग अलग निशान दिखाई देता है। चचा सब को बारी बारी उल्लू गधा कह कह कर कुर्सी से उतर जाने का हुक्म दे रहे हैं। आखिर फिर चफ्ती ली और कोने से तस्वीर टांगने की जगह को दोबारा मापना शुरू किया। मुकाबिल की तस्वीर कोने से 35 इंच के फासले पर लगी हुई थी। 12 और 12 की इंच है। बच्चों को ज़बानी हिसाब का सवाल मिला। बाआवाज़ बुलंद हल करना शुरू किया और जवाब निकला तो किसी का कुछ था और किसी का कुछ। एक ने दूसरे को गलत बताया। उसी तू मैमे में सब भूल बैठे कि असल सवाल क्या था।
नए सिरे से माप लेने की जरूरत पड़ गई। अब चचा चफ्ती से नहीं मापते, सुतली से मापने का इरादा रखते हैं। सीढ़ी पर 45 दर्जे का जाविया बनाकर सुतली का सिरा कोने तक पहुंचाने की फिक्र में है कि सुतली हाथ से छूट जाती है। फिर लपक कर उसे पकड़ना चाहते हैं कि उसी कोशिश में जमीन पर आ रहते हैं। कोने में सितार रखा हुआ था, उसके तमाम तार चचा जान के बोझ से यकलख्त झंझना कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब चचा जान की जबान से जो मंझे हुए अल्फाज निकलते हैं सुनने के काबिल हैं, मगर चची रोक देती हैं और कहती हैं कि अपनी उम्र का नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल करो। काफ़ी दुश्वारी के बाद चचा जान असरनो मेख गाड़ने की जगह मुय्यन कर लेते हैं। बाएं हाथ से उस जगह मेख रखते हैं और दाएं हाथ से हथौड़ा संभालते हैं। पहली ही चोट जो पड़ती है तो सीधी हाथ के अंगूठे पर आप करके हथौड़ा छोड़ देते हैं। वो आकर नीचे गिर जाता है किसी के पांव पर। हाय हाय ओफो, और मार डाला शुरू हो जाती है। बच्चों, मजा आ रहा है ना कहानी सुनते हुए? चच्ची जल भुनकर कहती हैं, यूं मेख गाड़ना हुआ करे तो मुझे 8 रोज पहले खबर दे दिया कीजिए, मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाया करूं, और नहीं तो। चचा नादिम होकर जवाब देते हैं, ये औरत जात भी बात का बतंगड़ बना लेती है। यानी हुआ क्या जिस पर ये ताने दिए जा रहे हैं? आइंदा हम किसी काम में दखल न दिया करेंगे। अब नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। मेख पर दूसरी चोट जो पड़ी तो उस जगह का पलस्तर नरम था। पूरी की पूरी मेख और आधा हथौड़ा दीवार में, और चचा अचानक मेख गड़ जाने से इस जोर से दीवार से टकराए कि नाक गैरत वाली होती तो पिचक कर रह जाती। उसके बाद असर नौ चफ्ती और रस्सी तलाश की गई और मेख गाड़ने की नई जगह मुकर्रर हुई, और कोई आधी रात का अमल होगा कि खुदा खुदा करके तस्वीर टंगी। वो भी कैसी? टेढ़ी और इतनी झुकी हुई जैसे अब सर पर आई। चारों तरफ गजगज भर दीवार की ये हालत गोया चांद मारी होती रही है। चचा के सिवा बाकी सब थकन से चूर नींद में झूम रहे हैं। अब आखिरी सीढ़ी पर से धम से जो उतरते हैं तो कहारी गरीब के पांव पर। गरीब के डील थी। बच्चों, डील यानी वो सख्ती जो पांव की उंगलियों के बीच चप्पल या जूती की रगड़ से पैदा होती है। चचा उसकी चीख सुनकर सरासीमा तो हुए, मगर पल भर में दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, इतनी सी बात थी, लग भी गई, लोग इसके लिए मिस्त्री बुलवाया करते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? थी ना दिलचस्प?